Okay students, let us start with today's class, but before I start, quickly tell me each and every concept from permutation combination chapter is clear to all of you. Quickly confirm in the chat section. We have covered permutation combinations topic in our previous classes. क्या सबको clear है सब कुछ उन chapter में से? So today we will be having a doubt class for that chapter. तो अगर कोई भी आपको concept में doubt है या फिर किसी भी question में doubt है, do ask me, otherwise I will give you few questions to practice from my end. So, जैसे मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर में, बट एक्चुअल के लिए ज़्यादा आपको कॉम्बिनेशंस टॉपिक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. Okay, everyone is saying, sir, everything is clear. So now quickly tell me, have you all completed your homework? So I have given you homework to complete all the exercises from permutation combination chapter from your class 11th NCERT textbook. Have you all completed all homework? Quickly confirm me in the chat section. कोई है जिसकी कोई भी एक्सरसाइज बची है? 7.3 तक तो मैंने लास्ट क्लास में दे दी थी. इस क्लास में मैंने आने से पहले आपको बोला था 7.4 और मिसलेनियस करके आना है. 7 या 6 चैप्टर नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. तो अगर किसी को याद है तो मुझे बता दो. चैप्टर 6 था या फिर हमारा ये, हाँ 6 था, सॉरी 6.3 6.4. 6.3 तक पिछली क्लास में दिया था. इस क्लास में मैंने आपको 6.4 और मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज दी थी. सबकी कंप्लीट हो चुकी है. अगर नहीं भी हुई यू कैन टेल मी, ठीक है, वी कैन प्लान आवर थिंग्स अकॉर्डिंगली. मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग सर it's done. Few students are there who are saying sir not yet done. तो ठीक है, प्रोसीड नहीं कर रहा आज मैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड नहीं कर रहा. अभी हम क्या करते हैं, जिनका हो गया वो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, और जिनका नहीं हुआ उनको तो होना ही है. ठीक है, सो लेट मी जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक ऑन माई स्क्रीन. आई विल मेक यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. तो हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी होमवर्क सारा कंप्लीट करके आ चुके हैं, ठीक है, वो दोबारा फ्रेश से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टुडेज क्लास. How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute? I am giving you just 2 minutes to solve this question. Again, I am again and again repeating, in these classes you can use your calculator, because there was another response, sir can we use calculator, as I am in currently class 11th. So student, if you are preparing for class 11th maths exam, your school exam, you are not allowed to use calculator, but in these classes you are preparing these topics from actual point of view. That's why you are allowed to use your calculator for these classes only. But जब हम 11th और 12th का एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. आपको उस पर करना पड़ेगा फोकस, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर एक्चुअल जर्नी थोड़ा जल्दी. तो इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन क्लासेस के लिए आप कैलकुलेटर्स का यूज करो. Perfect. Quickly start attempting this question. I am giving you 2 more minutes. जिनका हो जाए they can give their answers in the chat section.
Okay students, let us start discussing this question. I have started receiving few answers. So बहुत बेसिक से समझते हैं क्वेश्चन, कैसे हमें अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस पे और कैसे इसका आंसर फाइंड आउट होएगा. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स. व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? जो वॉवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स है. ए ई आई ओ यू के अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे. कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड इन्वोल्यूट. तो लेट me just take my white screen. I hope my white screen is visible to all of you. Students, is my white screen clear to all of you? Okay, let me just try to share it again. I hope it is visible to all of you now. Perfect. तो पहले वर्ड देख लेते हैं क्या था हमारा. So let me just select the correct pen. Let us use this one today. So involute is my word. अब यहाँ पे हमारे vowels कितने हैं, पहले हमें ये काउंट करना है. 1 2 3 and 4. So there are 4 vowels and rest 4 are consonants. So हमारे पास टोटल 4 vowels हो गए, 4 consonants हो गए. तो 4 vowels में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 vowels चाहिए थे, तो 4C3 will be 4. और 4 consonants में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 2. तो 4C2 will give you 6. तो 5 लेटर का हमें वर्ड बनाना है, तो वो कितने हमारे पास वेज हो गए? 4 into 6 which is 24. तो 24 कॉम्बिनेशंस आ गए. 24 कॉम्बिनेशंस किस चीज़ के आ गए कि हम 5 लेटर का वर्ड बना सकते हैं. लेकिन अब वापस इसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा. हो सकता है फर्स्ट वर्ड यहाँ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अलग अलग कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पे पहले को पुट करने के कितने ऑप्शन हैं? 5 में से 5 कोई भी कर सकता हूँ. उसके बाद अगले में 4, उसके अगले में 3, उसके अगले में 2, उसके अगले में 1. तो ये हो गए इतने वेज ऑफ अरेंजिंग. तो इन शॉर्ट ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल. तो टोटल क्या आ जाएगा? 24 into 5 factorial, which will give you 2880 ways. Is it clear, students? Quickly have a look on this question. If you have any doubt, do ask me. Is it clear? Perfect. Started receiving a lot of yeses. Let us proceed to the next question. So students, I am again repeating, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करते हो, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग भी डाल सकते हो. I will discuss that question today's class. Otherwise, we will just keep on proceeding with the order. So quickly try this question now. A group consists of 4 girls, 3 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl, at least 1 boy and 1 girl, third part, at least 3 girls? I am giving you 2 minutes to solve this question. 2 minutes for all 3 parts. Very simple one. ये simple है. So 2 to 3 minutes to solve all 3 parts. जिनका हो जाए, they can give their answers in the chat section, but don't give me answer part wise. You can just write first का ये answer, second का ये answer, third का ये answer, and then press enter in the chat section. Quickly attempt.
I have started receiving few right answers, students. Let us start solving this question. I hope you all have gone through the question again. If not, quickly click the question because I am going to my white screen where I will be solving this question. So just quickly click the question, then I will move to my white screen accordingly. Okay, let us just solve it part wise. So first part was saying you have to create a group of 5 boys. ठीक है, तो 5 बॉयज़ का हमें ग्रुप बनाना है. 5 बॉयज़ मैंने क्यों बोला, क्वेश्चन में तो बोला नहीं था 5 बॉयज़, क्योंकि वहाँ पे लिखा है नो गर्ल्स. अगर नो गर्ल्स लिख दिया और हमें 5 लोगों की टीम बनानी है तो हमें 5 बॉयज़ ही तो लेने पड़ेंगे. सो फर्स्ट पार्ट आंसर विल बी टोटल बॉयज़ कितने हैं 7 C5 विच विल गिव यू 21. अगेन इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एक्चुअल, यू जस्ट नीड टू पुट इन द कैलकुलेटर एंड सॉल्व इट. सेकेंड पार्ट एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो कम से कम एक बॉय और एक गर्ल चाहिए. तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो हम एक बॉय से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे. अगर एक बॉय ले रहे हैं तो कितनी गर्ल्स लेनी पड़ेंगी 4 गर्ल्स, क्योंकि 0 बॉयज़ नहीं ले सकते. 0 बॉयज़ क्यों नहीं ले सकते, पहली बात तो गर्ल्स ही टोटल 4 है, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन में लगाई है कि कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स. सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर 3 बॉयज़ कर दूंगा तो 2 गर्ल्स चाहिए. और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर 4 बॉयज़ करूंगा तो 1 गर्ल चाहिए. अब 5 बॉयज़ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मुझे कम से कम एक गर्ल क्वेश्चन में बोला था. तो ये बहुत सिंपल है, अगर एक बॉय चाहिए तो क्या हो जाएगा 7C1 मल्टीप्लाइड बाय गर्ल्स टोटल कितनी थी 4C4 विल बी इक्वल्स टू नेक्स्ट 7C2 4C3 नेक्स्ट 7C3 4C2 एंड लास्ट विल बी 7C4 4C1. इन सबको कैलकुलेटर में पुट करोगे, फाइनल आंसर विल कम्स आउट टू बी 441. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में एटलीस्ट 3 गर्ल्स. तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब 3 गर्ल्स और 1 बॉय या फिर 4 गर्ल्स और 0 बॉयज़. ये 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है. ओ सॉरी 5 का ग्रुप बनाना था ना, सॉरी ये हमने 4 का ग्रुप बना दिया. तो ये हो जाएगा एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए तो 3 गर्ल्स और 2 बॉयज़, क्योंकि 5 आई थॉट 4 का ग्रुप बनाना है, 5 का बनाना है. 3 गर्ल्स 2 बॉयज़ 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय. माई बैड. इज इट क्लियर. तो 3 गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा 4C3, 2 बॉयज़ के लिए 7C2, 4 गर्ल्स के लिए 4C4, 1 बॉय के लिए 7C1. इज इट क्लियर. सो इसका फाइनल आंसर हमारे कैलकुलेटर में पुट करोगे तो वो आ जाएगा 91. किसी को भी कैलकुलेटर यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो आपके पास आपके पोर्टल पे जो मैथ्स के लेक्चर्स हैं, मैथ्स रिफ्रेशर लेक्चर्स, उसके अंदर भी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो. यू कैन जस्ट टाइप कैलकुलेटर वीडियोस बाय गोइंग टू आवर यूट्यूब चैनल. तो इट्स अप टू यू, आपको यूट्यूब चैनल पे जाके देखना है, पोर्टल से देखना. सो यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस क्वेश्चन, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को कोई भी डाउट आ रहा है दे कैन आस्क मी क्विकली. स्टूडेंट्स, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. This is a very important topic from actuarial point of view.
Perfect. Started receiving a lot of yeses. Let us move to the next question now. So students, quickly start attempting this one. Find the number of ways with or without meaning which can be made using all the letters of the word. Again, if these words are written in a dictionary, what will be the 50th word? ये अच्छा है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. So quickly attempt students. I will discuss this question in next 4 minutes. This is a good question. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी रेडी करेगा. एक्चुअल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ठीक है, कर लेते हैं. वी हैव टाइम. यस प्रथा, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू परमुटेशन टॉपिक. चलो इसको कर लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये. लेट मी जस्ट मेक यू सॉल्व फ्रॉम द स्क्रैच. तो इसको सोचना कैसे, ऐसे सोचो. डिक्शनरी में आपको पता है कि अल्फाबेटिकली हमें वर्ड्स दे रखे होते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है. पहले ए से सारे वर्ड शुरू होंगे और लास्ट में सारे जेड पे आएंगे. ये सबको क्लियर है. तो यहाँ पे हमें अगेन एक वर्ड दे रखा है और उसके लेटर्स यूज़ करके हमें रीअरेंज करना है. तो अगर मैं अगेन लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड्स है? टोटल 5 वर्ड्स है, लेकिन 2 बार क्या आ रहा है? ए आ रहा है. तो सबसे पहले हमें कैसे स्टार्ट करना है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखो कितने हो सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखने के लिए क्या कितनी पोजीशंस है? 1 2 3 4 5. लेकिन ए और ए 2 बार रिपीट हो रहा है. तो परमुटेशन टॉपिक में हमने क्या सीखा था? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. यही सीखा था, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो ये आ गया 60. तो टोटल 60 वर्ड्स बन सकते हैं. हमें 50th वर्ड बताना है कौन सा है. तो सबसे पहले वर्ड्स किससे शुरू होंगे? ए से शुरू होंगे. और कितनी पोजीशन बची? 4 पोजीशन बची. 4 में क्या क्या आएगा? जी लेटर, ए लेटर, आई लेटर, एन लेटर. तो चारों में कोई भी अब लेटर रिपीट नहीं हो रहा. तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल वर्ड्स हमारे ए से शुरू होंगे. तो टोटल कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल को करूंगा तो 24. उसके बाद ए के बाद अगला अल्फाबेट क्या है? अब ये वाला ए और ये वाला ए तो एक ही बात है. इसके बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा? अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँ तो ए के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा? क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, क्विकली. जी आएगा. परफेक्ट. अब मैं जी को अगर प्लेस कर दूं तो फिर से 4 प्लेसेस वैकेंट हो गई. लेकिन अब 2 बार ए आ रहा है, तो ए को हमें
डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 12 वर्ड्स। तो 24 यहाँ गए, 12 यहाँ गए। अभी तक हम 36 वर्ड्स काउंट कर चुके हैं। जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद आएगा आई। आई में भी 4 पोजीशंस, लेकिन ए 2 बार आएगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर से 12 वर्ड्स। तो 24, 36, 48 वर्ड्स हो चुके हैं। अब आई के बाद क्या आएगा? ऐसे सोचो। अब यहाँ पे आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम थोड़ा मैनुअली करेंगे काम। आई के बाद क्या आएगा? एन। अब इसको अरेंज करो, एन ए ए, उसके बाद जी आता है, पहले आई आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जी आई। ये हो गया 49th वर्ड। 49th वर्ड। अब 50th वर्ड क्या हो जाएगा? एन ए आई जी। तो ये हो गया हमारा 50th वर्ड। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ गुड क्वेश्चन। Is it clear, students? Quickly tell me. Is it clear? Perfect. Started receiving a lot of yeses. तो ठीक है, बाकी सारे मोस्टली एग्जाम्पल्स अब परमुटेशंस के हैं। मैं परमुटेशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको करवाना चाह रहा, बिकॉज एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कॉम्बिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। लेट मी सॉल्व यू वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल वाइंड अप टुडेज क्लास। सो क्विकली अटेम्प्ट क्वेश्चन 3 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। अ कमिटी ऑफ 7 टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls। तो इसके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आज की क्लास में कर चुके हैं। सो 5 मार्क्स आई एम गिविंग यू 5 minutes to solve this question. You can definitely use your calculator, because I am again and again seeing a lot of students are asking sir can we use calculators, और मोस्टली वो स्टूडेंट्स 11th 12th के हैं। तो बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन क्लासेस के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ही करना है, बिकॉज हमें एक्चुअल के लिए कैलकुलेटर में भी तो कमांड बिठानी है। So to best utilize these classes, you can use your calculator. So last question of today's class. With this, we will wind up permutation combination chapter, but you need to practice all the exercises from this chapter. तो हमने almost 3 classes invest करी इस chapter पे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से practice करनी पड़ेगी in this week. तो ये वाला question solve करो, 5 minutes दे रहा हूँ, फिर wind up करेंगे quickly.
Students, last 2 minutes, quickly give your answers in the chat section. Then I will start discussing the last question. Okay students, started receiving a lot of answers. We are running short of time. Let us just quickly solve this question and then we will call it a day. So first part में मैं क्या बोला था? Exactly 3 girls. Exactly 3 girls. So first part में बोला 3 girls का हमें ग्रुप बनाना है. तो टोटल हमें ग्रुप कितने का बनाना है? 7 का. तो अगर 3 गर्ल्स चाहिए तो कितनी बॉयज़ चाहिए होंगे? हमें 4 बॉयज़ चाहिए होंगे. तो टोटल हमारे पास गर्ल्स हैं कितनी? टोटल हमारे पास गर्ल्स है 4. तो इट विल बी 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 9C4. दैट्स इट. सेकेंड पार्ट में मैं बोला था एटलीस्ट 3 गर्ल्स. एटलीस्ट 3 गर्ल्स. तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़. दूसरा क्या बन जाएगा? 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़. दैट्स इट. इसका क्या आंसर होगा? जो तो हम निकाल चुके हैं. दिस इज 4C3 एंड 9C4. अगले वाले क्या क्या हो जाएगा? क्विकली टेल मी. अगले वाले का क्या होएगा? परफेक्ट परफेक्ट. अगले वाले का हो जाएगा 4C4 एंड 9C3. Is this clear? I will reveal final answers. I know you guys are eager to know the final answers, but let me just solve you all the 3 parts first, then I will reveal final answers for all the 3 parts. Next क्या था? At most 3 girls. At most 3 girls. At most 3 girls. तो इसके अंदर क्या क्या ग्रुप बन जाएंगे? सॉरी गाइस. तो इसमें क्या क्या ग्रुप बन जाएंगे बेटा? 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज. देन 1 गर्ल एंड 6 बॉयज. देन 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज. तो इसका क्या हो जाएगा? 4C0 multiplied by 9C7. Then 4C1 9C6. Then 4C2 9C5. Then 4C3 9C4. Is it clear? So final answer for this part is 1632. Final answer for second part is 588. And final answer for first part is 504. Let me just zoom it out, then you can either note it down or just click the answer. Students, quickly have a look. Anyone having any doubt in any of the part, do ask me, otherwise we are done for the day.
Okay, one student is saying, sir, it's very simple to solve via calculator. Why we are not allowed to use calculator in class 11 12? अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसका आंसर ये है कि अगर आपको 11 12 से ही कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ कर देंगे तो आपकी कैलकुलेटिव स्पीड कैसे बढ़ेगी. ठीक है, तो हमें मेनली अपना दिमाग चलवाना, तो इसलिए आपको एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि 11 12 तक हम हैंड से कैलकुलेशंस करो, उसके बाद आप कैलकुलेटर अलाउड करो. किसी अगर आप बोर्ड की एग्जामिनेशन में जाओगे वो 11 12 से कैलकुलेटर अलाउड कर देते, बट इट्स टोटली फाइन. 1-2 साल की और बात है, जब हमने 10th तक हैंड से सारी कैलकुलेशन कर ली तो 2 साल और सही, उसके बाद तो लाइफ ईजी हो जाएगी. और अभी अगर आप एक्चुअल के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो तो आप दोनों के मजे ले रहे हो. 11th पढ़ते वक्त हैंड से कैलकुलेशन करो, एक्चुअल पढ़ते वक्त आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करो, दोनों इंपॉर्टेंट है. Students, quickly confirm, is this clear? So first right answer I have received from Arastu. Perfect, Arastu. बस अरास्तु ने मुझे सेकंड पार्ट का आंसर गलत दिया था, बाकी 2 पार्ट सही थे, फर्स्ट और थर्ड सही थे. परफेक्ट अभिमन्यु, परफेक्ट रोहन, परफेक्ट कमेला, परफेक्ट चांदनी, राइट आंसर्स. Students, I am still here for 2 more minutes. If you have any doubts, do ask me. Otherwise, I will call it a day, and we have covered another topic, which is permutation combination. Okay, Vanshika is asking her favorite question, homework. Homework is still the same, nothing new. जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं सबकी एक्सरसाइज अच्छे से कवर कर लो. अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हमने सेट्स कवर कर लिए जो कि हमने पूरा चैप्टर कवर करा था. फिर हमने रिलेशन फंक्शन करे थे जो हमने लिमिटेड करा था, वो मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि आपको कितना कितना करना है. फिर उसके बाद हम लीनियर इनइक्वालिटी पे गए थे, वो भी हमने पूरा कवर करा था. फिर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर करा है. तो अभी तक किसी का कोई भी एक्सरसाइज होमवर्क के लिए रहता है, सब कंप्लीट कर लो. ठीक है. Okay students, so that's it from my side. We'll continue in next class. Thank you.